Students, to our next lecture. In the last lecture we have discussed the introductory part of national income, the features of national income, definition of national income, and the circular flow of national income in the two sector economy. Today it is the time to discuss the next point, that is different concepts of national income. In that different concepts there are total 4 concepts available. First one is gross domestic product, that is called as GDP. Second one is net domestic product, it is called as NDP. Third one is gross national product, it is called as GNP. And fourth one, net national product, it is NNP. We will discuss all these concepts one by one. Let's come to the first concept, that is gross domestic product. This concept we have already discussed in the 11th. What is GDP is that it is gross or total money value of all final goods and services produced in a year in the domestic territory of the country. There are 4 points to be remembered in this definition. First one is the money value. What is meant by money value is that in simple language the price of the commodity, that will be called as the money value. Then second one, final goods and services. When we are discussing the features of national income, we have discussed this final goods and services. What is meant by final goods and services is that when we calculate the national income, we should not take in the account the value of the raw material, because it is already counted in the previous year. That is why it is known as value of final goods and services. Then in a year, means in an accounting year, we know that our accounting year starts from 1st April and ends on 31st March. Between that 1 year, every year, how much goods and services produced, the money value of all those goods and services will be calculated in the national income. Then domestic territory. Domestic territory means in our country, the domestic boundaries of our country, geographical boundaries of our country, in that boundary whatever goods and services are produced by the country, by the producers, by all the factors of production, these things will be taken in the consideration when we calculate the GDP. Now come to the point GDP, gross domestic product. Okay, what is meant by gross? The total money value. Domestic means in Marathi it is called as घरेलू. Okay, घरेलू का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर में होगा. Okay, that will be called as domestic product. Okay, whatever the production is there, that will be called as gross domestic product. मतलब जो भी goods and services हमारे घर में, मतलब हमारे देश में प्रोड्यूस की गई है, उसका मनी वैल्यू जब हम लेंगे, वी विल कॉल इट एज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड दिस कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द very basic concept. Okay, what is meant by very basic concept is that it is the first concept which is used to the calculation of national income, and in that concept all the goods and services produced in the country are calculated. That is why it is called as the basic concept. इसको क्या कहते हैं हम? GDP कहते हैं. हमारे देश में जितनी भी goods and services पैदा हुई है, मतलब प्रोड्यूस हुई है, उसका मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम लेंगे एक साल में, और डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब हमारे पूरे देश में जो सारी चीजें पैदा हुई है उसका जब मनी वैल्यू हम लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी. देन वी कम टू द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी. वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज गिवन एज GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. What is meant by C plus I plus G plus X minus M? We will discuss that one by one. Here C indicates the private consumption expenditure. Now it is a technical term. What is meant by private consumption expenditure? In simple language is that all the customers in the country, all the consumers in the country, whatever the amount they are spending on the particular goods and services, that is called as the private consumption expenditure. मतलब हमारे देश में जो भी सारे कस्टमर हैं, वो जितना सारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जब भी हम मार्केट में जाएंगे, कोई भी चीज लेने के लिए जाएंगे, तो हमारे जेब से जो पैसा जाएगा, उस पैसे को हम क्या कहेंगे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देन
Then it is second one is I, domestic investment expenditure. Because we are calculating the gross domestic product, we will take here the domestic private investment. Domestic private investment का मतलब क्या होता है, जो हमारे घर में हमारे जो बिजनेसमैन है, जो हमारे जो उद्योजक है, उन्होंने सबने मिलके जो भी पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. देन वी कम टू द थर्ड, दैट इज G. This G represents government consumption and investment expenditure. What does this mean? जो हमारा गवर्नमेंट है वो उसकी जो सारी मशीनरी है वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट भी करेंगे. फॉर एग्जांपल कंजम्पशन किन चीज़ों का होगा, जो हमारा पूरा का पूरा स्टाफ है, उसको स्टाफ को चलाने के लिए जो बिल्डिंग लगती है, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगा. फॉर एग्जांपल देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. Which are those companies? HPCL, BPCL, all these companies are there. And the government when make investment in those companies, that will be called as the government expenditure, government investment expenditure. Then we come to the next one, that is X minus M. It is called as the net export value. Net export value का मतलब क्या होता है? For example, suppose हमारे देश में कुछ इंपोर्ट हुआ है और कुछ एक्सपोर्ट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सपोज आवर इंपोर्ट इज ऑफ रुपीज 10,000 एंड आवर एक्सपोर्ट इज ऑफ रुपीज 5,000. Okay, now our import is 10,000 and our export is 5,000. What will happen here? Here will be our net export value will be negative. So from this particular three things, C plus I plus G, इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5,000 माइनस करना पड़ेगा. बिकॉज नेट एक्सपोर्ट वैल्यू कितना है हमारा, -5,000 है. लेकिन अगर इसको हम रिवर्स करेंगे, हमारा इंपोर्ट सिर्फ सपोज 5,000 रुपीज का है और हमारा एक्सपोर्ट 10,000 रुपीज का है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश में पैसा ज्यादा आ रहा है. कितना आ रहा है, 10,000 रुपीज. एक्सपोर्ट मतलब जब हम कमोडिटीज को सेल करेंगे बाहर की कंट्री में, पैसा वहां से आएगा, तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा है 10,000 रुपीज और इंपोर्ट कितना है, कम है, मतलब 5,000 रुपीज है. हम क्या करेंगे, कम पैसा बाहर देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेट एक्सपोर्ट वैल्यू हमें मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, इसको C प्लस आई प्लस जी जो है उसमें ऐड कर देंगे. अगर निगेटिव होगा तो उसमें से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव होगा तो उसमें से ऐड किया जाएगा. एंड दिस टोटल वैल्यू C प्लस आई प्लस जी विल गिव अस, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम विल गिव अस द GDP, that is known as gross domestic product. Then we come to the next definition, next concept, that is net domestic product. Okay, now there is only one difference, that is between gross and net, is that, let's discuss the definition. NDP is the net money value of all final goods and services produced within the territorial boundaries of the country during 1 year. ओके, हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका नेट वैल्यू हमें लेना है. जीडीपी में हमने कौन सा वैल्यू लिया था, ग्रॉस वैल्यू लिया था, मतलब टोटल वैल्यू लिया था, और हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेट वैल्यू लेंगे. तो ये नेट वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, हम पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा. NDP is the formula of NDP is like this: C plus I plus G plus X minus M minus depreciation. अगर हम इसको और एक तरीके से देखेंगे इस फॉर्मूला को, तो हम क्या देखेंगे, NDP is equal to GDP minus depreciation. डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज विच वर प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर. मतलब पिछले साल में जो हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको हम अभी यूज करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिडक्ट होने वाला है. अगर उसका वैल्यू रिड्यूस होता है तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो हमारा जीडीपी है उसमें से निकाल देंगे. अगर हमने नहीं निकाला तो हमारा क्या होगा, उसका वैल्यूएशन गलत हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज अभी हमारा साल चल रहा है 2020 और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21. ओके, अगर हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है, हमें जीडीपी तो कभी पिछले साल का ही कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2019-20 का हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है. तो
ये इस साल का जीडीपी कैलकुलेट करने में हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल इस साल में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसका वैल्यू लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज 50,000 रुपीज की हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पूरी प्रोड्यूस हुई है। ओके, सो ये जो 50,000 रुपीज की जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। एंड उसके पहले साल में 2018 एंड 19 में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है सपोज उसका भी वैल्यू 50,000 रुपीज है, उसका भी वैल्यू कितना है, 50,000 रुपीज है, वो हमें देखने को मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये तो इस साल में भी यूज हुई है लेकिन इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रिडक्शन हुआ है क्योंकि उसका यूज हुआ है। अगर हम शोरूम से बाहर गाड़ी निकालेंगे तो हमें उस जितने प्राइस में हमने लिए उतने प्राइस में हम वहां पे बेच नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू अलग से लेना पड़ेगा। सपोज इसमें 10% डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन कितना हुआ, 5,000 रुपीज इज द डिप्रिसिएशन, इसका 10%। ओके, तो हमारा इस साल का जीडीपी कितना है, 50,000। हमें क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 रुपीज में से 5,000 रुपीज माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा 1920 का जीडीपी कितना आएगा, 45,000 रुपीज। दिस इज हाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड। वी विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जीडीपी, देन वी विल गेट द एनडीपी, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन we move to the next one, difference between GDP and GNP. What is the difference between GDP? Only remember the red point here, gross money value and net money value. Okay, GDP is the gross money value of all final goods and services produced in the country in 1 year, and NDP is the net money value of all final goods and services produced in the country in 1 year. The difference between these two concepts is only these two words, gross and net. Gross money value and net money value is the only difference between these two things. Gross money value का मतलब क्या होता है, हम पूरी वैल्यू लेंगे, और नेट मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो गुड्स पिछले साल में प्रोड्यूस हुई है इस साल में उसका इस्तेमाल हुआ है, उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, उसमें से रिडक्शन कर देंगे। देन वी कम टू द फॉर्मूला जीडीपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये तो हमने देख लिया है। और जब हम इस फॉर्मूला में से सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। सो दीज आर टू इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। जब हम जीडीपी लेंगे और जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। दीज आर वेरी इजी कंसेप्ट्स। देन नेक्स्ट कंसेप्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके पहले हमने क्या देखा था, ग्रॉस डोमेस्टिक। ओनली द डिफरेंस ऑफ वर्ड इज नेशनल एंड द डोमेस्टिक। नाउ वी कम टू द कंसेप्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल का मतलब अब क्या होगा, यहां पे हमें इस तरह उसको देखने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डेफिनेशन बुक में दी गई है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, तो आप इस डेफिनेशन को ले सकते हो। जीएनपी मीन्स ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced annually in the country plus next factor income from abroad. Okay, now here one point is added, that is net factor income from abroad. जब हम डोमेस्टिक के बारे में देख रहे थे, जीडीपी के बारे में देख रहे थे, हमने जो एब्रॉड का है मतलब जो बाहर के देशों का है उसको ऐड नहीं किया था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमें इनकम बाहर से मिलने वाली है उसको ऐड कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का पॉइंट जीडीपी और जीएनपी में एक ही होगा, वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब बाहर से जो हमने इनकम ऐड की है उसको हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो कीवर्ड्स यहां पे कौन से होंगे, ग्रॉस मनी वैल्यू मतलब टोटल मनी वैल्यू, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जो हमने प्रोड्यूस की हुई कमोडिटीज है उसका सिर्फ फाइनल वैल्यू लेना है। उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल होता है, उसका वैल्यू कहीं पे और कैलकुलेट हुआ होगा तो हमें उसको लेना नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन एन्युअली, एन्युअली का मतलब क्या होता है, एक साल में। एंड नेक्स्ट वन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज दैट वी विल डिस्कस। पहले हम उसका फॉर्मूला देख लेंगे। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जो फॉर्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होगा जीडीपी का।
ओके, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब हमें क्या करना है, जीडीपी में एक चीज ऐड करनी है। कौन सी चीज ऐड करनी है, रिसीट्स माइनस पेमेंट, आर माइनस पी। क्या है ये पूरा हम देख लेंगे आने में। सी तो हमें पता है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई डोमेस्टिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। देन जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम हमें नेट एक्सपोर्ट वैल्यू का पता है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड जिसको नेट एक्सपोर्ट वैल्यू कहा जाता है। और जब हम देखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, now this is very important. What is mean by net factor income from abroad? There are, we know that 4 factors of production. Which are those? Land, labor, capital and entrepreneur. ये हमारे 4 factors of production है। ओके, इसका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, तो प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, now this is very important concept. Look at the board. We will take one example. Suppose there are 2 countries. Look at the board here. India and suppose America. There are 2 countries. Now we are calculating the net factor income from abroad. Okay, there are 2 companies. Suppose India की कंपनी जो है टाटा है, और अमेरिका की कंपनी हम कौन सी, तो एक लेंगे एचपी ले सकते हैं हम। ओके, एचपी नहीं, हम एप्पल लेंगे। ओके, देयर आर 2 कंपनीज, एचपी कंपनी, सॉरी, टाटा कंपनी बिलोंग्स टू इंडिया एंड एप्पल कंपनी बिलोंग्स टू यूएसए। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हमें क्या लेना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारा टाटा कंपनी होगा वो क्या करेगा, उसका प्लांट सिर्फ इंडिया में है ऐसे कोई बात नहीं है, वो अमेरिका में भी बिजनेस करता है। ओके, तो वहां से उसने क्या किया, सपोज 1 लाख रुपीज ईयरली कमा लिए। ओके, rupees 1 lakh he earned from working in the America. Okay, and Apple, this company is also working in India. All over it has the offices. Okay, so this company has earned rupees suppose 50,000 from India. ओके, एप्पल कंपनी ने क्या किया, हमारे यहां से कितने रुपए कमाए, 50,000 रुपीज हमारे यहां से कमाए। ओके, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। व्हाट इज द फॉर्मूला, रिसीट्स माइनस पेमेंट। ओके, जो हमें हमारे टाटा ने अमेरिका में कमाया है वो क्या करेगा, हमें इंडिया में मिलेगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिसीट्स। और जो एप्पल कंपनी है जो हमारे इंडिया में काम कर रही है, उसने कितना रुपीस कमाया, 50,000। ओके, तो ये पैसा कहाँ पे जाएगा, ये पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो बाहर रजिस्टर्ड है और ये जो कंपनी है वो हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड है। ओके, सो आर क्या हुआ, 1 लाख रुपीज हमें क्या मिला, रिसीट मिला, पैसा हमारे यहाँ पे आया। ओके, और 50,000 रुपीज ये क्या है, एप्पल ने कमाया हुआ पेमेंट हुआ। क्यों पेमेंट हुआ, क्योंकि ये पैसा बाहर जाने वाला है। ओके, सो रिसीट्स माइनस पेमेंट, रिसीट कितना है 1 लाख, पेमेंट कितना है 50,000, तो नेट बैलेंस कितना हुआ हमारे यहाँ पे 50,000 रुपीज इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सो हियर now when we calculate the gross national product, what we calculate here is that C plus I plus G plus X minus M plus R minus P, receipts minus payment। ये हुआ हमारा receipts माइनस पेमेंट, हमें कितना मिला 50,000 रुपीज। जीडीपी में जब हम ये 50,000 रुपीज ऐड कर देंगे हमें क्या मिलेगा, GNP मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो अब जीडीपी में से हम जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। उसी तरह से हम जीएनपी में से जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे हमें क्या मिलेगा, एनएनपी मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला हियर इज दैट जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज द फॉर्मूला हियर। सी दैट यू कैन सी दैट जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज द फॉर्मूला। देन we come to the next point, that is difference between GNP and NNP. Only difference point is that gross money value and net money value. When we take the gross money value of all final goods and services plus the income from abroad, we get the gross national product, and when we reduce the value of depreciation from that, we get the net national product. Now
Here is one important point. Look at the slides. Slide now. Difference between GDP and GNP. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी? हमारे घर में, हमारे डोमेस्टिक कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे। और जो हमारे देश में पैदा होने वाली गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके साथ साथ हमने जो बाहर से इनकम ऐड किया हुआ है, हमने जो बाहर से इनकम लाया है उसको हम जब ऐड करेंगे उसमें हमें क्या मिलेगा? जीएनपी मिलेगा। फॉर्मूला तो आपने देख लिया है। देन so these are the four concepts of national income we have discussed: GDP, GNP, NDP and NNP. All these are the concepts we have discussed. You can revise before. Thank you.